I'm making notes about you, Vikrant. Change in behavior. Change in behavior? You two just told me nothing's changed. I've never seen you do बाकी सारी चीजें. Like PR and positioning or parties में जाना or whatever. That's not your vibe. But there are days when I sit back and actually question my choices also. एक्टरों को एक पोस्टर बॉय ऑफ कलेक्टिव मोरालिटी बनाया जाता है, जो गलत है, बहुत गलत है. वो एक बहुत एंड इट इज डॉन्टिंग. I did sort of really like a girl then. She also knew that I liked her. इसको मैं तो बहुत brief रखूँगा because there's every possibility that they'll be watching this episode. Okay, we're rolling. Should we start? Yeah. I think we should. Hi, Vikrant. Hi Riya. 7 साल बाद. 7 साल बाद. After half girlfriend. After half girlfriend. मुझे लगा नहीं था कि हम सीधा ऑन कैमरा मिलेंगे. Yeah. But I said catch up करना ही है. करना तो था ही. तो we'll catch up on camera. Yes. And glad you sort of initiated this. Really happy. Very happy for you. Very happy to see you. And same, very proud of you. Very proud of like the work you're doing, where you are. When I see it, I feel like, you know, ये हमारा लड़का है. You know, we used to discuss this जब हम लोग न्यूयॉर्क में थे, केप टाउन में थे. हम लोग बातें करते थे कि यार विक्रांत सब लीडिंग एक्टर से बेटर है. You know, that he should be. अच्छा, मेरे सामने तो कभी बोला नहीं है. This is the first time you're telling me this. झूठे सब बोला है. But विक्रू, my last memory of you is 6-7 साल पहले कहीं हाफ गर्लफ्रेंड के शूट के बाद you, me and Anisha were driving. पता नहीं हम गाड़ी में जा रहे थे, मेरे तब के ड्राइवर जोगिंदर के साथ. Yes. जिसको आपने बाद में चुरा लिया था. चुरा नहीं लिया था मैंने. चुरा लिया था. नहीं, मैंने चुराया नहीं था. He reached out to me and I sort of hired him and now He's gone. हाँ, वो I think he's in the climbing. Yeah. He said चलो रिया मैम का काम कम हो गया, विक्रांत सर के पास जाता हूँ. But I remember something very unique about that drive. We were passing by Linking Road में your college. Yes. And you said Salam College. Yeah. I always do that. Actually, it's a thing which all the boys in my circle do. All my college friends do. Most of them have moved out. कोई दुबई में है, कोई कहीं और है. So whenever we, एक तो यहाँ पे आना होता भी नहीं है. So my college is, like, just for the audience, is National College Bandra, right in the middle of the street, Linking Road. बहुत कम आना जाना होता है, तो जब भी होता है तो we always salute it. You know, it's I don't know. I mean, it's a thing which all the boys in the circle actually do. It's a thing, but like when you, ये ना, मतलब ये वो बंदा कर सकता है जो cool नहीं बनना चाहता है. You know what I mean? Who's not pretending to be कि मैं इतना cool हूँ. Because these things, especially for men, are not considered कि very manly. Emotion दिखाना या अपने college को respect करना या ऐसा कुछ. And I remember that and I was like, चलो let me see कि सलाम कॉलेज से लेके अब विक्रांत कैसा है. You know? तो कैसा है? अब तो सेम ही लग रहा है. Same ही है ना? अब तो सेम ही लग रहा है मुझे. I hope. I don't know. How are you? You had a baby. I had a baby. शादी, बच्चा, सब हो गया. And kind of you to say the work is also good. Happy. Happier. In your chapter 2. In my chapter 2. Yeah. Love it. And अभी chapter 2 की बात चल रही है, so I really want to congratulate you, Riya. I know lately you've been hearing this, especially after the clean sheet, and I want to say it on record. You deserve the best. You know, I really want to sort of congratulate you and your brother and your family, if I may. Everyone knows what you've been through. So chapter 2 की असली हकदार तुम हो. So well done, bro. Thanks, bro. Well done. So we both are sitting here अपने chapter 2 में. Yeah. आज 7 साल बाद. 7 साल बाद. दो दोस्त तो यार कॉफी और चाय पीते cheers. You know, I realized कि I know you, मैं तुझे जानती हूँ, मतलब हमने काम किया है, हम लोग घूमे हैं, डिनर्स पे गए, हमारा एक ग्रुप था Mad Hatters. Yes. याद है? अनीशा, निधि, हम सब साथ में. But I want to know more. मतलब शुरू से शुरू करें. Yeah. Like बचपन से
आई फील कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट आंटी. मैंने तेरे काफी इंटरव्यूज देखे थे बिफोर कमिंग, आज रिसर्च करना पड़ा तेरे ऊपर. आई फील कि शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ हु यू आर टुडे. Yeah. और कहीं ना कहीं उनका वो असर दिखता है थ्रू व्हाट यू से. सो आई वांट टू नो कि ऐसा क्या था उस अपब्रिंगिंग में that made you you. There's a very centered person then, the Vikrant that I knew, and even today. I was going to ask you कि ये सब fame मिल गया and has it changed you, but I don't need to ask that anymore. नहीं, it does change, पता है. But coming back to your previous part, I think, and I've said it a couple of times, more than a couple of times before that, I think it's my mother who really sort of, a lot of my personality, a lot of my character is because of her. A very average middle class family where the father would step out of the house every day, would come back at night. तो पूरा दिन माँ के साथ रहे, you know, and I have an older sibling. So she's been my pillar. She continues to be so. Blessed with a wonderful family, and I'm sure you can second that कि वो जो आपका value system होता है, जो आपकी नींव होती है, वो परिवार से ही होती है. बिल्कुल. And also because of the nature of our jobs, there are so many people around you, there's so much of noise around you. So to cut that noise, to cut that fluff, you know, it's very, very important. अब centered हूँ कि नहीं हूँ वो मुझे नहीं पता, because there are days when I have my weak moments. There are days when I get severely anxious, when I don't know where I'm heading. But the moment I go back home, I know I'm in safe hands. I'm in my safety area. But coming back to my mother, I think, you know, that's the case with most mothers. You know, they've, especially that generation. My mother was born in the year 64, and very tumultuous time, you know, for most people, because we were a young nation at that time. You know, seen a few, you know, the social scene was also pretty tumultuous because of, you know, the wars that happened between India, Pakistan, and, you know, the China war had happened. So, and as I said, we were a very young nation at that time. My maternal side had migrated from Pakistan during partition. They stayed in Amritsar for some time, and from Amritsar they came to Bombay then. तो बहुत ही, you know, कुआं खोद के खुद पानी निकाला है जी उस जनरेशन ने. So they kind of valued, you know, वो एक निवाले की भी वैल्यू थी, you know, सर के ऊपर छत की भी वैल्यू थी, तन पे कपड़े की भी वैल्यू थी. तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत ही ना सींच सी गई थी. And that's how my mother raised her boys. And I think that forms a part of our DNA. और क्या बोलूँ, I mean, एक बहुत ही strong sense of right and wrong है. And also एक चीज़ का ये भी एहसास है कि again, because of the nature of our jobs, the field that we are in, everything is very fickle, very transient. रातों रात कुछ भी हो सकता है. So yeah, I mean, it's great while it's there, you enjoy it, because you know that we've always wanted to be actors. It's a childhood dream. Very few get an opportunity to sort of realize those dreams, but while you're at it, you should also sort of be cognizant of the fact कि ये सब temporary है, like everything in life. तो या enjoy करो, but तो एक गोल और दूसरे गोल के बीच में जीना भी जरूरी हो जाता है ना. हाँ, life is not just about goals anymore, I think, and also because of social media, and also एक सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हम सबकी बड़ी है मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, सबकी तो खैर नहीं बड़ी है, हमारी शायद बड़ी हो. नहीं, बट बहुतों की चेंज भी हुई है. व्हाई आई मेंशन सोशल मीडिया इज बिकॉज, फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हेन यू टॉक अबाउट ये 10 साल पहले हसल कल्चर बहुत पीपल यूज्ड टू लुक अप टू इट. करेक्ट. यू नो, मल्टीटास्किंग के बारे में बहुत लोग बात करते थे, पर आज वैसा नहीं है. तो दौर बदलता है, चीजें बदलती हैं, यू नो, ट्रेंड्स बदलते हैं. तो 10 साल पहले जो हसल कल्चर ट्रेंड हुआ करता था, आज लोग कहते हैं कि ठहर जाओ, यू नो, बी माइंडफुल. माइंडफुलनेस की बातें हो रही है, मेंटल हेल्थ की चर्चा हो रही है, क्योंकि कोई एंड नहीं है ना.
हाँ। लाइक मैं अपने मॉम डैड से ये बात कर रही थी कल ही कि पापा से लाइक हाँ तुम लोग इतने बिजी रहते हो कि हमें पता भी नहीं चलता है कि मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा कहाँ निकल जाता है, और हम साथ ही रहते हैं तो भी मालूम नहीं पड़ता है। और इस सब में वो जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक आई एम फीलिंग लाइक वी आर ओल्ड पीपल। विक्रांत ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया? सारे यहाँ जो आते हैं 20-21 साल के, हम मिलेनियल्स की लाइफ थोड़ी अलग थी राइट? अपने पास फोन था पर मोबाइल फोन नहीं था, Yeah. सो वी कुड गेट इन टच विद ईच अदर, पर ऐसा नहीं था कि हर मोमेंट कुछ था। Yeah. इंस्टाग्राम भी तो तभी आया था जब हम शूट वूट कर रहे थे, लाइक Yeah, I think- इट वाज जस्ट न्यू। Yeah, 7-8 years ago. ऐसा नया नहीं था कि Yeah. ओ माय गॉड एवरी डे यू हैव टू पोस्ट एंड वेरेवर यू आर गोइंग एज एन एक्टर कोई आपके पीछे घूम रहा है कि यहाँ रील बनाते हैं वहाँ रील बनाते हैं, ये सब कुछ था नहीं। नहीं था। एक फोटो आई रिमेम्बर हमारी भी है न्यूयॉर्क से, मेरे एक दोस्त के साथ हम लोग कहीं गए थे लंच पे, हम तीनों की एक सेल्फी है, वो भी Yes, मेरे Anaya, with Anaya, with we'd gone, Anaya, we yes. had gone, वो भी मेरे इस पे कहीं नीचे है। आई वाज थिंकिंग तब इतना सिंपल था और बस लिख देते थे कि had fun at lunch Yeah. with Vikrant and Anaya, Yeah. you know। अब तो कैप्शन भी कोई और दे रहा है, इतना थॉट है, इट शुड बी ऑर्गेनिक बट यू आर शूटिंग इट। तो आई थिंक दुनिया वैसे भी बदल गई है और वैसे भी बदल गई है, बहुत बदल गई है यार। I mean, because of social media, especially for actors. I mean, the other day I was sitting and chatting with someone, and you know, so बात करते करते भी realized कि यार आज एक एक्टर के लिए एक्टिंग छोड़ के बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं। एंड बट यू आर अ प्राइम एग्जाम्पल, एक्चुअली वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स कि बाकी सारी चीजें जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी हैं बट उसके बिना आई हैव नेवर सीन यू डू बाकी सारी चीजें लाइक पीआर एंड पोजीशनिंग और पार्टीज में जाना और व्हाटएवर, दैट्स नॉट योर वाइब। but there are days when I sit back and actually question my choices also. You know, there are days when I actually, as I said, you know, there are days when I probably fall weak and I sit with that thought for like 2-3 days and I'm like, am I doing the right thing? Should I go out there and position myself a certain way? Should I actually go out there and get clicked by Paps? Because airport se to main bhi jata hu. Should I also do my airport looks and all these things? But चौथे दिन I and to each their own, you know, वो और वो जरूरी भी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसका एक ट्रैक्शन है। मैंने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू दिया था एंड आई होप यू सेकंड मी ऑन दिस बिकॉज वी थिंक लाइक आई वाज इन अ प्रोडक्शन रूम, you know, my producers very kindly wanted me to be a part of the development process and we were there and they asked me कि you know, audition tapes मुझे 2 actresses के दिखाए, 2-3 actresses के दिखाए उन्होंने and they're like कि आपको कौन पसंद है? And I said, you know, she's phenomenal, she's very good. पर मुझसे पूछने के बाद भी, of course, because they are producers, it's their prerogative, they have the first right of refusal. So they said, नहीं यार, बात तुम्हारी सही है, but we'll probably go with her because she has Social media. a bigger Instagram following. और ये अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। करेक्ट। The other day I read about, unfortunately I can't recollect the name of the actor. He said कि ये सेम चीज हॉलीवुड में भी हो गई अब, कि जिनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग है उनको ट्रैक्शन के लिए, उनको विजिबिलिटी के लिए लाया जाता है। आई मीन वी आर फाइटिंग फॉर अटेंशन। That's how it is, you know. आज की डेट में लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट करेंसी? अटेंशन। क्योंकि सबको ADHD है, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है ना, खट 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 खट। अभी याद नहीं है आपको, आपने कुछ देख लिया जरूर बट आपको याद नहीं है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एवरीवन हैज इट, तो यू हैव टू कीप पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर। बट इन दिस एक आर्टिस्ट का सर्वाइव होना भी मुश्किल है। हाँ, मतलब हम वही बात कर रहे थे, राइट? लाइक यू वर काइंड इनफ टू से कि मैं ये करता नहीं हूँ, बट आई कंसीड कि देयर आर डेज इवन टुडे व्हेन आई रिफ्लेक्ट एंड आई क्वेश्चन माय चॉइसेस। करना चाहिए कि नहीं, कि डिड आई मिस द बस और यू नो, एम आई डूइंग द राइट थिंग? बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, द काइंड ऑफ पीपल आई एम वर्किंग विद, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। तो पता नहीं यार, इट्स सो मच, बहुत कुछ है पता है। बट कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे हमारी बात और ये टॉपिक हमारा शुरू हुआ था, कि आई थिंक what you do in front of the camera is what matters the most here. And I can very proudly say, even if I come across as pompous, I apologize, but कैमरे के सामने जो मैंने कैमरे के सामने किया, मैं उसी बिना पे यहाँ पे बैठा हूँ। बिल्कुल। I still go out, I still do my regular routine stuff, not
hundreds of people are not walking up to me. आधे time तो they don't even recognize me, which is great. पता नहीं मुझे अच्छा लगता है वो. क्योंकि प्राइवेसी रहती है फिर. Privacy रहती है, एक sense of normalcy भी रहती है रिया. I'm a Bombay boy. तो for me to not go out and do my mundane daily things, it bothers me. मुझे चिंता होती है उस चीज की, क्योंकि कई बार होता है. There are days when I actually want to step out and have a meal by myself. तो अब वो जगह देख के बैठना पड़ता है, but I still want to go out there and probably I'm facing my back towards people, but I want to go out there and have my meal by myself. But people obviously recognize you. They do, and of course I want them to. Yeah. But you also want this. But I also want this. I don't know. It's so. No, it's interesting because जब हम फेम के बारे में सोचते हैं, for example, fame is like it's a slippery beast. जब आप It's a double-edged sword, ना? Correct. आप शुरू में आते हो, आपको पता नहीं होता है कि इसका नेगेटिव भी होता है, आपको मजा आ रहा होता है. Like for you, I started with DD. With DD. With DD. Wow. So that was 2004. I did a show called कहाँ हूँ मैं, which was a mini series for Star Plus, but that show never came on air. The producers were kind enough to sort of offer me another show which was for DD, and that was my first show which came on air. Oh, and this was how old were you? I was 17. Wow. I was 17 that time. This was 2004. So almost 21 years ago now. So yeah, sorry, you were saying something. तो I'm saying कि वहाँ जहाँ से हम शुरू करते हैं और जहाँ तक हम जाते हैं, उस बीच में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं फेम के बारे में. Absolutely. क्योंकि शुरुआत में तो ऐसे मजा आता है ना, जब आप even I started at 17, I was a VJ on MTV, लोग मुझे पहचानते थे, मुझे बड़ा मजा आता था. Yeah. Oh, yes, it's me, ऐसे करके cut. Used to feel very good. Yeah, inside. of course, you feel Then great. you realize कि that fame has a con. Yeah. किसी ने आपको बताया नहीं कि फेम का ये भी है. Yeah. And the other side of fame is very scary actually. Yep. I've witnessed a lot of it, and I tell people जो लोग actually fame के used to नहीं हैं या fame की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं है. I'm like, अपने आप से ये बात जरूर कर लेना कि आपको fame चाहिए या नहीं चाहिए. I mean, ये है ना, be careful what you wish for. बिल्कुल. Be very careful what you wish for, because you might have it, but you might see a completely different facet or side of it someday. क्योंकि कहना आसान है, like I want to be famous. Yeah. But actually what you said पहले is true. आज की डेट में मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती हूँ without getting papped or clicked or something or the other. अब इसमें आपको 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं, right? कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, you know, all of these things become your mind is always filled with clutter. So you are this actually peace loving, homely kind of boy. You are this boy. So I feel you when आप ये, you know, having these questions to yourself about this positioning and PR and airport looks. पर अब जब आप वो हो ही नहीं, अगर आप वो करोगे तो I don't know कि वो कितना successful होगा. और मेरे केस में नहीं हुआ. नहीं. Not that I didn't try, Riya. I did try it for good 4-5 months, probably half a year. I started attending parties, I started renting out clothes, and they are so expensive. Yeah. इतना पैसा लगता है एक ही बार कपड़े पहनने के लिए, and you know, Hair, my wife, she was my girlfriend, then she would be like, क्यों, you know, 50-60,000 a day per event. वो 4-5 घंटे के लिए तुम बड़े डिजाइनर के कपड़े पहन रहे हो, वो पूरे महीने का खर्चा है हमारा. Fair. तो वो सारी चीजें, you know, फिर but I tried, you know, coming back to the thing that I tried and I failed, and I realized how uncomfortable I was. I didn't feel like myself. Like going to these parties, wearing these ultra expensive clothes. I was so conscious, you know, पूरे time I would be like कि यार इस पे कुछ गंदा ना हो जाए, because I have to return these clothes back. वो बहुत बड़े designer के कपड़े हैं. And slowly and steadily, when I realized that I am not feeling like myself, I took a stand. And I spoke to people who sort of, you know, encouraged me, because it didn't suit me, and it suits other people. तो ये नहीं है कि मैं सही हूँ वो गलत है, मेरे लिए वो चीज गलत थी. I feel कि that is also something जो आपको थोड़ा अलग बनाता है, like in the sense कि अगर आप सब जगह दिख रहे हो, like see आज let's be real, आज बॉलीवुड का हाल वो नहीं है जो 10 साल पहले था, जब हम लोग बैठ के aspire कर रहे थे कि you know, तब फिल्में बन रही थी, इतना काम था. I remember मेरी पहली फिल्म की बात
मतलब 2-3 फिल्में मना करनी पड़ रही थी। अब उतना काम ही नहीं है मार्केट में। आई फील दैट्स द रीजन व्हाई आल्सो फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल, क्योंकि उसके अराउंड की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप कह रहे हो कि प्रोड्यूसर्स भी उनको ही चूज़ कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है, बट द फैक्ट इज़ विक्रांत कि जो पिछले 5-6 सालों की फिल्में हैं जो मैंने देखी हैं बॉलीवुड के एटलीस्ट, उसमें अगर मुझे कुछ याद है तो वो एक सीन याद है आपका, where you fall to the ground when you're crying in 12th fail. Your whole body is moving, you know, जब आप select हो जाते हो. And I'm just like, that's what stands out for me. Thank you so much. You know, I was like, oh यार, Vikrant killed it यार. I was like, rewind के फिर से देखना है मुझे. Thanks. But I'm saying that still stays. अगर हम सिर्फ human memory की बात करें, तो क्या लोगों को याद है कि आज कोई जिम से निकला है हॉट दिखते हुए, कोई एयरपोर्ट जा रहा है, एक सेकंड के लिए तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे अब तक याद है वो सीन जो मैंने देखा आपका. नहीं, I'm so happy to hear this thing, and thank you so much. But having said that, I see nobody knows why things are working, why things are not working. So I don't think I'm qualified enough to say कि why things are not working, because I myself am figuring it out. But generalize भी नहीं करूँगा मैं, because कई बार ये चर्चा उठती है कि why are films in Bollywood not working? I don't know, like most people. You know, I don't claim to know. But I think काम है. ऐसा नहीं है कि काम नहीं है. आज OTT भी है. You know, when OTT started off, I said कि नहीं यार, ये एक अच्छी स्पेस है काम करने की, because I come from TV. तो मुझे ये इनहिबिशन नहीं है कि ये कौन से मीडियम पे आ रहा हूँ या मैं कुछ सिर्फ बड़े पर्दे पे आना है. Maybe I'm lucky that a 12th fail also works, and a Sabarmati also works in a cinema hall, and a Mirzapur also works on an OTT. I don't know how. I don't have an answer for it. But मुझे इतना पता है कि अगर अच्छी कहानी होगी, अगर अच्छे लोगों के साथ आप काम करोगे. Shahid Kapoor said one thing very which was very interesting, and it stayed with me. He said कि now in my life, अब मैं अपनी लाइफ में कैसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं कैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है. The journey. Yeah, it's the journey that you take. आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं? Are you aligning with the energies that you're going to be sort of sharing for one entire year of your life? Correct. And I second that. And despite me being a TV actor, a hero ka dost, an OTT actor, and now, like, because of 12th fail and Sabarmati, and this journey has also just begun, so I don't think I'm there yet. But as an actor जिसकी फिल्में सिनेमा में भी चल रही हैं, एक चीज मुझे ये पता है कि अगर आप काम अच्छे से करेंगे, जो एक्टिंग है कैमरे के सामने आप जो करेंगे, going back to what we started off with, whether they are watching it on their device, whether they actually buy a ticket and come to see you or your work in a cinema hall, एक वो relevance रहेगी अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे. I completely agree. Yeah. And I feel कि ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक एक तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे टच किए हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप एक एक्टर बनने बॉम्बे आते हैं, या बेशक बॉम्बे से भी अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि शुरू में आपको पैसे भी नहीं मिलते हैं. लाइक आई रिमेम्बर फॉर माई फर्स्ट 3 फिल्म्स, आई थिंक आई गॉट 5 लाख 7 लाख समथिंग लाइक दिस, और वो फिल्म आपका 1 साल ले लेती है. और शुरू की फिल्मों में तो अगर कोई जैसे लॉन्च कर रहा हो या आपको या कुछ करे, दे टेल यू कि और कोई फिल्म ही मत करना, अच्छा कहीं दिखना मत, और फिर आपको बोलते हैं कि अच्छा फिल्म फेयर अवार्ड्स पे जाओ, GQ अवार्ड्स पे जाओ, वो सारे अवार्ड्स पे जाओ, और यही 50-60 हज़ार के स्टाइलिस्ट हेयर मेकअप बुलाओ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. It is an expensive proposition. I still find it very expensive. It's very confusing. I have completely stopped going for this exact reason. I'm like, क्या करूँगी मैं उधर जाके? लेकिन नहीं जाओ, पर I mean, I don't even know the sense of it anymore, which was a thing. ये पहले बहुत ज़्यादा था. And I see actors जो यहाँ आते हैं, अच्छा, और एक आधी आपकी चीज़ चल गई और आप थोड़े से पैसे कमाने लगो, तो फिर तो आपको और भी लगता है कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए. फिर एक PR टीम भी हायर करो, उसको भी दे दो 60-70 हज़ार महीने के. फिर पैप्स को भी बुलाओ, ज़्यादा 1 लाख. फिर पैप्स को भी बुलाओ, कभी कभी बोलेंगे आपको पैप्स के साथ डील करो. I'm like,
I just don't understand. You're laying it bare. Yeah. You're laying it bare, you know. Yeah, because I've been watching this. मुझे खुद तो ये सीखना पड़ा the hard way. Because I realized कि जो मैं कमा रही हूँ उससे ज़्यादा तो मैं खर्च रही हूँ. तो आप कमाओगे कब? आपकी लाइफ स्पैन लाइक एटलीस्ट पहले तो एटलीस्ट फॉर गर्ल्स तो कम ही रहती थी. उसमें भी अगर चल गए तो दिस इज ऑल इन द होप कि एक फिल्म ऐसी होगी जिसमें तुम नोटिस हो जाओगी, जो अच्छी फिल्म होगी, जो पैसे भी कमा लेगी, उसके बाद जो तुम पैसे बनाओगे यू विल सेव दैट. बट आई एम टेलिंग यू, पिछले 5 साल से मैंने फिल्म नहीं की है. मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मैंने ब्रांड चलाना शुरू किया है चैप्टर 2 एंड इट्स जस्ट सो मच बेटर फाइनेंशियली. नो जोक, नो जोक. और कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी पार्टी में जाना नहीं पड़ता. और अब तो अपने खुद का ही ब्रांड पहनना पड़ता है. खुद के ही कपड़े पहनो. इट्स जस्ट सो मच बेटर. इट्स जस्ट सो मच बेटर. सो आई फील आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. इन फैक्ट फॉर you are the poster child of that typical actor who wanted to become successful the right way, and it's a unique thing. ये आपके साथ जो हुआ है. Why is it unique? मैं ना कई बार लोगों से कहता हूँ कि why is it unique? It shouldn't be. It shouldn't be, right? It shouldn't be. I mean the kind of actors we've seen, like मैं बोलता हूँ I have seen an Ajay Devgan. I aspire to be like an Ajay Devgan, an Amir Khan, an Irfan. वो भी तो इसी तरह से आए हैं ऊपर. उन्होंने भी 15-20 साल काम किया, मतलब इतना काम किया. एक टाइम पे तो अजय देवगन used to shoot 6-7 films a year. Yeah. And he used to work day in day out, 3 shift, 4 shift. It is only now in the last 10-15 years probably we see that where they are, but उसके पहले के 15 साल कोई नहीं देख रहा है. पर इन लोग को आप अभी भी देखो, the 3 people that you mentioned, Ajay sir, Amir sir and Irfan sir, they were never doing PR or they were never doing the other game. वो काम कर रहे थे. हाँ, I was coming to that only. Like even if they were doing PR, which मतलब वो प्राइमरी जॉब नहीं था. हाँ, वो सेकेंडरी जॉब. वो सेकेंडरी जॉब था. You know, फिल्म रिलीज के टाइम पे सभी PR करते हैं, करना पड़ता है to sort of bring people to the cinema halls because there's so much of heavy investment that's gone in. You've made the film for the audiences, but they were also making 6 films a year. They were also making 5 films a year. And like we started off with कि doing your PR or being visible was not their priority. Their priority was to be good in front of the camera. Correct. And then you know ये राजू ईरानी की फिल्म जो थी 3 Idiots, उसमें ये जो एक्सेलेंस वाली बात है, ये सच है. You know कि एक्सेलेंस को अगर चेस करोगे तो कामयाबी आएगी, अपने आप आएगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि as an actor my job is to firstly go out there, tell an interesting story which sort of reaches people's hearts, entertain them, and because of the privilege that I have, if I can be their voice through my privilege, that is my primary job. Whether it is a 12th fail or whether it is a death in the gunge or whether it is a criminal justice which was a long format show on Disney Hotstar. तो I mean कहानियाँ कहना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, पर ये चीज़ें हैं. And as I go back to, and I might sound very politically correct, but मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं रिया. बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं. अब वो मैंने एक चांस लिया है अपने साथ. As I said, I tried and I failed because I was not comfortable. I was not happy. I felt, you know, मुझे एक outer body experience feel हो रहा था. I was not very comfortable. I went back to my comfort zone and I tried to focus on the people I'm working with, the kind of people I'm working with, the kind of stories I'm telling. And that works for me. I might not be as famous as an XYZ, but I'm happy with it. I am happy with the quality of work I'm doing. Because lastly, I feel कि एक archival value कहानियों की होनी ज़रूरी है. You're an avid reader. You read, right? Yeah. There are days when you pick up a book which was written, say, 20 years ago. And it's still relevant. So that I feel should also be the case with stories. We are storytellers primarily. मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप 12th फेल की अगर बात कर रहे हैं या साबरमती की बात कर रहे हैं, वो 10 साल बाद भी रेलेवेंट होगी. And I'm proud of that.
I might not look the same. I might have a completely different worldview 10 years from now, and I hope I do. You know, You want to evolve. Yeah, you want to evolve with time. But मुझे इतना confidence है कि मेरी कहानियां जो हैं वो वक्त दर वक्त तब भी relevant रहेंगी. वो भी रहेंगी. हाँ, वो एक archival value होनी बहुत जरूरी है कहानियों की. But this privilege that you're talking about, you know, now today, इतनी मेहनत करके, and it's easy to see Vikrant Massey after 12th fail, now everything is great. I know the hunger you had. I have sat with you, हमने बातें की हैं कि यार मुझे करना है. You know, I know how hungry you were, and you would just say it, and I could sense it, and be like, you know, this guy. So when you win, it's I feel it's not just a luck thing. कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फिल्म चल जाती है ना, ये तो लक ही निकला. This is not a luck thing in your case. So kind of you to say that. Hard work, hunger, and pure dedication to your craft. I have seen it, so I don't need to ask this to you. But now that you have this privilege, a certain kind of a freedom, more options, more people wanting to work with you. कि success होता क्या है? Success वही चीज़ है कि सब आपके साथ काम करना चाहें और आप choose कर सकें कि actually नहीं, मुझे ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है. For example. एक तरह से एक प्रेशर भी आ गया है, मतलब आप पे भी और किसी और बॉलीवुड पे भी आ चुका है कि यू हैव टू टेल गुड स्टोरीज और यू हैव टू टेल स्टोरीज अ सर्टेन वे. डू यू थिंक दैट्स फेयर? डू यू थिंक दैट एक्टर्स को सोसाइटी का मॉरल कंपास बनाना फेयर है या नहीं है? I'll begin with the latter part. बिल्कुल फेयर नहीं है. ये मैंने थोड़े टाइम पहले भी ये कहा था कि आज की तारीख में एक्टरों से पॉलिटिकल सवाल पूछे जाते हैं. एक्टरों को एक पोस्टर बॉय ऑफ कलेक्टिव मोरालिटी बनाया जाता है, जो गलत है, बहुत गलत है. वो एक बहुत, एंड इट इज डॉन्टिंग. मे बी आई एम अ लिटिल थिक स्किन्ड बिकॉज आई हैव बीन हियर लॉन्ग इनफ एंड आई एक्चुअली डोंट केयर. But I have seen people around, or probably I have also been through it in a very minuscule way, that वो मोरालिटी का आपको एक पोस्ट बॉय बना दिया जाता है. बिल्कुल. तो वो बिल्कुल डॉन्टिंग है, यू नो. एंड एटलीस्ट ऑन यंगर शोल्डर्स, यू नो, यंग फ्रैजाइल शोल्डर्स, वो व्हेन दे स्टार्ट ऑफ लाइक 20, 21, 22, इट्स अनफेयर. इट्स रियली अनफेयर ऑन देम, बिकॉज कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है. बिल्कुल, सब नॉर्मल है, सब, और कोई परफेक्ट नहीं कोई है. परफेक्ट नहीं है. नहीं. पर जब हम एक एक्टर को देखते हैं या एक एक्ट्रेस को देखते हैं, तो हम उनसे सारी मोरालिटी वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली करेक्ट भी हों, वो मॉरली भी करेक्ट हों, फिर वो सक्सेसफुल भी हों, लेकिन हम्बल भी हों. तो वो बहुत वो दीज आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. आई एग्री. यू नो, तो मैं अपने कॉलीग से यही कहता हूँ कि क्यों इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हो यार. यू नो, हमारा ये वाइट मैन सिंड्रोम है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में. व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, हॉलीवुड की अगर हम बात करें, वहां पे रेफ फीन्स इज एन एक्टर, यू नो. ही इज प्लेड अ नाज़ी, ही इज ऑल्सो प्लेड अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर. ही इज एन एक्टर. नाउ व्हेन ही प्लेड अ नाज़ी, उनकी पर्सनल चॉइस पे या उनके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं किया था कि ये तुम्हारी फिलॉसफी है, तुम नाज़ी बन गए हो, तुम नाज़ी हो. करेक्ट. व्हेन ही प्लेड अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, लाइक वहां पे भी ही प्लेड बोथ द पार्ट्स. इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या ही दे सकता हूँ. लेकिन यहाँ पे अगर आज की तारीख में अगर आप इफ यू प्ले अ पार्ट, तो वो आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे आपको आप वो बन जाते भी हो, वो बना दिया जाता है. करेक्ट. कि अच्छा, ये आप नेगेटिव पार्ट प्ले कर दिया तो he must be like this. He must be like this, or he or she is like that. यार, अब चाहे हीरो हो या विलन हो, अगर वो बंदूक उठा के 10 लोगों को मार रहा है, तो वो रियल लाइफ में थोड़ी है वैसा, राइट? बिल्कुल. और आज अगर आप कोई नाजी प्ले कर रहे हो या अगर आप कोई ऑपरेसर प्ले कर रहे हो, that should not be attributed to your personality, your individual Agreed. personality. You're an artist. You will go out there. You will play all the different parts that are out there in the world for you to play. And that's how it should be. But हमने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से, बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों की वजह से, रेडिट की वजह से, मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आता है कि आई एम एक्चुअली नॉट वेरी टेक savvy. Most of them are nameless, faceless cowards. Especially on Reddit. They have the privilege to go out there. Nobody knows who they are. Speak anything. They speak anything. How can you take that seriously? They are cowards.
if they had the gumption, they would actually come out and talk to you. सामने से बोलते सामने से बोलो. तो इन लोगों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. पर ये विक्रांत ये पूरा एक साइकिल है. मतलब क्या होता है ना, एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स आई हैव एक्सपीरियंस दिस, व्हेन इंटरनली एज अ पर्सन जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है वो केयर नहीं करता है. आपको जो बोलना है बोलो, खराब बोलना है बोलो, अच्छा बोलना है बोलो. अब मैं वहाँ, मेरी एवोल्यूशन वहाँ तक हुई है क्योंकि मुझे करनी पड़ी कि आई कैन नॉट केयर कि वो क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में. बट क्या होता है, वो आप ट्रोल होते हो या आपके बारे में गंदी चीज़ें होती हैं, ब्रांड्स आपको साइन नहीं करते, मूवीज आपको साइन नहीं करते. अच्छा, दिस प्लेटफॉर्म वोंट वर्क विथ यू, दैट प्लेटफॉर्म वोंट वर्क विथ यू. ये ठीक होने लगता है. अच्छा, लोग अच्छी चीज़ें बोलने लगे, या वो जो इमेज की बात कर रहे हैं हम, जो मॉरली करेक्ट और ये वो फलाना ढिमकाना इमेज जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो वो वर्क कर रहा है, तो सडनली ब्रांड्स आपको साइन करते हैं, सडनली फिल्म्स आपको मिलने लगती हैं. That's the superficiality of the world. That's how it's always been. अगर ये लोग इससे अफेक्ट होते रहेंगे तो जो बीच वाले लोग हैं, हम एक्टर्स, एंटरटेनर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी, उनको ये गेम खेलती रहनी पड़ेगी. और जब तक उनको ये गेम खेलती रहनी पड़ेगी, वो अपने एक्चुअल काम पे फोकस नहीं कर सकते. नहीं, but what you're saying is bang on, and you know, really courageous of you to say that. But I'll pardon me if I do this, but I want to use your example in this case. बिल्कुल. Truth eventually wins, right? Longevity के बारे में कोई नहीं सोच रहा है. वो शॉर्ट साइटेड सक्सेस के बारे में सब सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. और जो एग्जाम्पल आपने भी दिया कि अगर ट्रोल होते हो या फिर मीडिया में चर्चा होती है, एक सो कॉल्ड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. अगर आपका कोर सच्चा है, और उसको मैं काम से अगर ये कहूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम अच्छा कर रहे हैं, आपका कोर अच्छा है, आप कैमरे के सामने जो कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, everything will fall into its place. Now when I talk about you, when I talk about रिया चक्रवर्ती, 5 साल पहले चीज़ें कुछ और थी, आज चीज़ें कुछ और हैं, राइट? तो जो पुरानी कहावत है यार, ये हमसे पहले भी था, हमारे बाप दादाओं के भी पहले से था कि सच्चाई जो है ना पानी की तरह अपना रास्ता ढूंढ लेती है. तो अगर आपने थोड़ी सी भी छल कपट की है, या अगर आपने थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन किया है, इट विल कम बैक टू यू. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फेथ, अगर आप फेथ की बात कर रहे हो, आई वांट टू सॉर्ट ऑफ, आई डोंट थिंक आई हैव एवर स्पोकन अबाउट दिस, बट क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि आई फील मेरे से बहुत बेहतर एक्टर हैं. आप सिर्फ आरामनगर चले जाओगे ना, आपको मेरे से हजारों गुना बेहतर एक्टर मिलेंगे. लक का भी एक फैक्टर है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नीयत साफ रही है. शायद मैंने किसी का गलत नहीं किया है, शायद. Of course, I'm not a hero in everyone's life. बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देते हैं. But that's how life is. तो अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, तो वो पानी की तरह, जैसे मैं कह रहा हूँ, रास्ता अपना ढूंढ लेता है. मुझे लगे 15-16 साल, बहुतों को 25-25 साल लग गए हैं. बहुतों को वो तो कभी नहीं मिला. But that's how life is, you know. We need, और faith की जो मैं बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टैलेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग मेरा फेथ है. और अगर आप कहते हो कि फेथ है, तो वो सरेंडर करना भी आपकी जिम्मेदारी है. Oh, I couldn't agree more. वो एब्सोल्यूट सरेंडर करना भी आपकी जिम्मेदारी है. और एब्सोल्यूट सरेंडर मींस एब्सोल्यूट सरेंडर. फिर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. हाँ, फिर उसको क्वेश्चन मत करो. रिया, आज मैं जो प्रिविलेज की हम बात कर रहे थे, आज मैं बैठ के चीजें चूज कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स बिकॉज एक साल में आप 50 फिल्में नहीं कर सकते हैं, बट आधे से ज्यादा जिंदगी जो काम मेरे पास आया, मैंने उसको कभी मना नहीं किया. बिकॉज एक सिंपल नॉर्मल माइंडसेट ये रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका शुक्र मनाओ और करो. ऊपर वाला लेके आया है ना. बालिका वधू केम टू मी, मिर्जापुर केम टू मी. और लोग आज भी आपको बालिका वधू से बहुत पहचानेंगे. 80% of the times in my 21-year career, I would say 70% of the work that I've done has come to me and I've never said no, because I had this fear within me कि यार ये ऊपर वाले ने लाके दिया है मुझे, मैं इसको मना करूंगा तो ये नाशुक्री होगी. उसका कईयों का अच्छा हुआ, कईयों का बुरा हुआ, बट एटलीस्ट आई फील कि जो ऊपर वाले ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उसको मना नहीं किया. ये अक्षय कुमार का भी कहना था. ये इन हिज अर्लियर स्टेज उन्होंने कभी काम को मना नहीं किया. जो काम आया उन्होंने कभी मना नहीं किया. बच्चन सर
Yeah, even he did that. I don't know about him. Bachchan sir has even in his low phases of his career, he has gone set पे जाके directors को बोला है कि मैं पीछे भी खड़े हो जाऊँ, मुझे background में रख लो, बस मुझे set पे रहना है, मुझे काम करते रहना है. So when you have these guys as an example, I feel कि एक ये है, which is what I wanted to bring forward to people watching and probably aspiring actors. बहुत सारे लोग होते हैं कि यार एक ये भी है, एक ओरिजिनल वे जो ब्लूप्रिंट की आप बात कर रहे हैं, जो बच्चन सर हो, आमिर खान हो, अजय देवगन हो, एनी ऑफ दीज एक्टर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड टू वॉच एंड लर्न, ये भी एक ब्लूप्रिंट है. That is timeless यार. वो मुझे लगता है टाइमलेस है. पता है मुझे कई बार मैं टेलीविजन के सर्किट से आज भी बहुत क्लोजली जुड़ा हूँ. मेरे बहुत से लोग जो हैं वो दे आर जनरस इनफ टू से वी लुक अप टू यू. आपने कैसे किया, हमें सलाह दीजिए, एडवाइस कीजिए. तो मैं कोशिश करता हूँ बिकॉज एज आई सेड नोबडी नोज एवरीथिंग. मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने घर पे बैठ के ना ये मत सोचो कि मैं सिर्फ फिल्में करूंगा या मैं सिर्फ हीरो बनूंगा. क्योंकि मैं अपना ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ यार. जो काम आया, बड़ा आया, छोटा आया, उसको करो. क्योंकि इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू ना, nobody can stop you. I completely agree. Huh. Like I do this show called Roadies now. So these young kids come and they participate in the show. They are really hungry, ambitious, very nice kids. 19, 20, 21. तो मेरे पिछले सीजन में एक बंदा था ऋषभ. Very good looking boy, एक्टर बनना था. रोडीज पे आया, he was कमाल का था. He said, मैम मैं क्या करूँ, मुझे मतलब फिल्में करनी है. उसको टीवी के ऑफर्स आ रहे थे. अच्छा तू टीवी कर. अच्छा तेरे को जो काम मिल रहा है तू कर and your work will speak for itself. Of course. And today he is doing very well on TV and he doesn't have a day off. कहता मैम मैं आपका कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं इतना बिजी हूँ. So I'm so happy क्योंकि कोई someone will see your work, 10 लोग बात करेंगे, फिर 11वां बोलेगा कि मेरे को पास करना है. And all the lines have blurred, especially because of OTT. Yeah. और OTT को आज हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, बट मैं बहुत ही ब्रूटली एक चीज कहता हूँ. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड व्हेन आई सेड दिस थिंग, बट दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. बड़े से बड़ा फिल्म स्टार भी टीवी पे है. ऑल ऑफ देम आर ऑन टीवी बिकॉज टेलीविजन जो है इज अ डोर टू डोर मीडियम. अब वो डोर टू डोर मीडियम आपके हाथ में आ गया है, तो लाइंस सारी ब्लर हो गई है. आज मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं. मेरे घर का स्टाफ है, वो बिहार के गांव से है, 10-15 साल से मुंबई में रहते हैं. कानों में हेडफोन लगा के वो हिंदी डब्ड अवेंजर्स की सारी फिल्में देख चुके हैं. वो टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल की सारी सीरीज देख चुके हैं. वो मतलब डेडपूल, वुल्वरीन, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन से लेके सब कुछ देख चुके हैं. ये वो लोग हैं जो सोशो इकोनॉमिकली एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास 15 साल पहले या 10 साल पहले वो प्रिविलेज नहीं था या वो एक्सेस ही नहीं था. आज वो हिंदी डब्ड या तमिल, तेलुगु, all the regional languages, they are watching the same thing in the language that they want to watch in. They are watching world class content on their devices. तो जब हिंदी सिनेमा की बात आती है तो वो कहते हैं कि अरे हम क्यों पैसा खर्चा करके वहां जाएं देखने के लिए, जबकि हम हॉलीवुड का वर्ल्ड क्लास VFX, वर्ल्ड क्लास एक्शन, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड बिल्डिंग हमको उस भाषा में अब देखने मिल रहा है. तो जब वो हिंदी में फिल्म देखते हैं और जब उनको कोई फिल्म नहीं समझ आती जिसका VFX बहुत ही खराब है, दे कॉल इट आउट. पता है सबको आज अब सबको सब कुछ पता VFX क्या होता है, डबल यूज हुआ है, नहीं वो फिल्म की हमको लाइटिंग पसंद नहीं आई, लाइक दिस इज द चैटर. दे डू दैट. VFX की बात कर रहा हूं मैं, मेरे घर पे चर्चा चलती है VFX की. दे सेड कि अरे उसकी बॉडी के ऊपर किसी उसका फेस किसी की बॉडी पे चिपकाया हुआ है, दिखता है वो. एंड आई से कि यार, तो it really makes me pull up my socks saying कि यार ये देख रहे हैं सब. अब मैं ना इनको बेवकूफ नहीं बना सकता. अब मैं complacent भी नहीं हो सकता. And also, it's such a competitive industry, Riya. You know it so closely. Everybody wants to be an actor in India. Everybody wants to be a cricketer. Correct. So when you're blessed, when you're there, when you're working with the best of people who are actually a dream to work with, so you better pull up your socks, yaar. Because the moment you look behind, there are thousands of people waiting for you to slip and take your place. And there's always someone, I believe this, younger than you, better looking than you, and more talented than you. Yeah. Always. तो अगर आपको कोई जगह मिली है जिंदगी में, प्रिजर्व करो, उसकी वैल्यू करो. या
वो बहुत ज़रूरी होता है वो। तो व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, तो वी ऑल्सो एज एक्टर्स और एज स्टोरी टेलर्स नीड टू रियली सॉर्ट ऑफ, यू नो, वी कांट बी इनडिफरेंट। वी हैव टू बी कॉग्निजेंट कि यार द वर्ल्ड इज एक्चुअली श्रंक। आज आपके मोबाइल फोन्स पे आप कहीं का भी कंटेंट देख सकते हो यार। अरे आप एक सिंपल सा रील उठा लो इंस्टाग्राम से, थिंक ऑफ लाइक अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, द क्वालिटी ऑफ द एडिट, द म्यूजिक, द एडिटिंग, एवरीथिंग दैट दे डू, इट्स नो लेस देन लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। ये लोग घर भर में एक फोन के साथ बना लेते हैं। सम ऑफ देम तो हम लाइक यार इनको हायर कर लेते सोशल मीडिया टीम में, दे सो गुड एंड दे आर सो ब्राइट। या लाइक दिस एंटायर मीम कल्चर, मुझे तो ऐसा लगता है कि दे आर सच टैलेंटेड पीपल। हम हैं नहीं इस दुनिया के, ये जेनजीज की दुनिया है। वो लोग अभी ना आज की डेट में The kind of humor that you see sometimes, it's so funny. It's I mean, it is so funny. मुझे ऐसा लगता है कि यार कितने क्रिएटिव लोग हैं यार, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। we didn't have the access to a mobile phone and editing apps, मतलब टीनेज के ईयर से नहीं था अपने पास, नहीं था। इनके पास था। इनके पास। तो यू नो आई थिंक दिस जनरेशन इज डिफरेंट। बट हम जो फेथ की बात कर रहे थे, लेट अस कम बैक टू Yeah. फेथ। आई पर्सनली हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन फेथ, एंड आई थिंक कि फेथ के बिना अगर आप जी रहे हो तो आई फील आप कुछ मिस कर रहे हो, यू नो, इन द वर्ल्ड। एंड काफ़ी लोग नॉन बिलीवर्स होते हैं, फेथ नहीं है, नहीं रियलिस्ट होते हैं। वो रियलिस्ट की एक दुनिया ज़्यादा बढ़ती जा रही है आज की डेट में, जैसे मैं देख रही हूँ। देयर रियलिस्ट्स आर सराउंडेड अस, कैपिटलिज्म की दुनिया है, यू नो, डोंट, दिस इज डिल्यूजन, फेथ मेरा एक दिन हो जाएगा। पर कोई भी बंदा या बंदी जो बॉम्बे आके मुंबई शहर में एक एक्टर बनने के लिए आया हो, वो तो फेथ के बिना तो आप आओ ही मत। लाइक आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब आज की डेट में लोग मुझे कहते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दिस विल वर्क, जब हम टी शर्ट कंपनी शुरू कर रहे थे, क्लोथिंग ब्रांड, सब ने कहा नहीं कंजम्पशन डाउन है, डोंट स्टार्ट इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी क्राउडेड मार्केट। अच्छा तो यशराज फिल्म मिलना भी तो डिफिकल्ट चीज़ है, वो भी तो किया है ना हमने, ये भी कर लेंगे। आप कोशिश करोगे ही नहीं तो आप करोगे कैसे? करेक्ट करेक्ट। But I wanted to ask you, there's a very big confusion between religion, faith and believing in God. लोगों को लगता है faith मतलब religion, religion मतलब God. Like there is a, I feel these three are different things. I've also heard in some of your interviews that in your family there are all religions. Yeah. So truly secular Yeah. India living together. So I want to hear a bit about that. और आप मुझे ये भी बताएं कि इससे आपके फेथ पे और आपके रिलीजन के समझ पे क्या फर्क पड़ा है? लंबा सवाल। नहीं, वेरी पर्टिनेंट, आई लाइक इट। बट यार सी, मेरा ये मानना है कि रिलीजन इज अ पर्सनल चॉइस यार। बिल्कुल ठीक है, आई हैव सेड दिस बिफोर। मुझे ऐसा लगता है, माइट बी रॉन्ग, मुझे लगता है कि सबके पास वो एक फ्रीडम होनी चाहिए टू चूज द वे ऑफ लाइफ दे वांट। फॉर मी रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। You choose to sort of pray to a certain deity, you choose to live a certain way. And it is such a universal concept, मुझे लगता है कि सबको वो चूज करने का पूरा हक है। रहा सवाल मेरा, as you said, मेरे घर पे हर प्रकार के रिलीजन्स आपको मिलेंगे और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी है। That's so interesting, but ऐसे कभी सुना नहीं है मैंने किसी। नहीं, बहुत हैं। हाँ, बहुत हैं। मतलब मेरे दोस्तों के घर में आप देखिए, ऐसे कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब हिंदू ने मुसलमान से शादी की है, गुजराती ने मतलब शादी करना I get, but I'm saying like you said your brother converted Yeah. when he was young. Your dad and mom were already different religions. So your dad's Christian, my dad is Christian. your brother is Muslim, Yeah. your mom is Is a Sikhni. and Yeah. you are? I follow everything. You follow मैं सब कुछ करता हूँ। That's crazy, man. Yeah, and It's so enriched. I mean, yeah, I hope it is. I hope it is because मेरा थोड़ा रिलीजन को लेके कॉन्सेप्ट अलग है। मुझे लगता है कि रिलीजन इज मैन मेड, यू नो, बट वो भी बहुत एक लंबी डिस्कशन है। मुझे ऐसा लगता है, बट एज आई सेड, एवरीवन हैज द राइट टू फॉलो देयर थिंग, बट आई थिंक आई हैव दिस फेथ कि कोई तो है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता। बिल्कुल। मैं पूजा करता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं दरगाह भी जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। मेरा ये है कि मुझे इन तमाम चीज़ों से पीस मिलता है। आपको जहाँ पीस मिले, आपको मंदिर में मिले या मस्जिद में मिले, आप वो करिए। बट मुझे इतना लगता है कि कोई तो है ऊपर जो देख रहा है।
क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो आई एम सो ब्लेस्ड, और वो मेरा फेथ ही है कि जो मुझे यहाँ तक लेके आया है। मैं अपना घर की दहलीज पार नहीं करता बिना प्रे किए। यू नो, व्हेन आई गो बैक होम सेफली एंड साउंडली, बिना कुछ हुए, You thank God. I thank God. I'm blessed to yet still have my parents around me. When you see people your age, you know, at an age when, you know, so many friends are losing parents. COVID भी आपने निकाल लिया। आज भी माँ के हाथ की रोटी खाने को मिलती है। आज भी मतलब रात को जब उनके कमरा खोल के देखते हो तो वो सेफ हैं। तो कुछ ऐसा लगता है कि something is looking after you. कुछ तो है। तो मेरा ये एक है, you know, this is what I feel. I mean, religion is such a complicated topic. It's very right? complicated, It's so yeah. complicated, or especially in the age of social media today, and also आप कुछ because भी करो आपको गाली पड़ सकती है। and actors are so susceptible to these things. तो मैं अभी ज़्यादा बात ही नहीं करता इस बारे में, because once bitten twice shy वाली बात भी है, and I've no apprehensions in admitting कि जब मैंने ये बातें पहले की थी तो बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। और एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि मैं सोशल मीडिया बंद ही कर दिया मैंने उसके बाद। इट डिड बॉदर मी। You know a little bit about me. I am a sensitive person, but my belief system still stands true कि I think toxicity भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसको जो करना है करें, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। And most importantly, we really need to look beyond these things and value each other for the people that we are. यार। बिल्कुल, I agree. इंसान को इंसान के तौर पे तुम देखते नहीं हो, वो पर ये कंडीशनिंग कैसे बदल सकती है? अब पता नहीं यार, ये तो मुश्किल ही चीज़ है ना। आई फील कि हम लोगों को पहले उनके अपीयरेंस से, फिर उनके प्रोफेशन से, फिर उनके रिलीजन से तो नापते हैं। और आप ज़्यादातर इंडिया में फैमिलीज को देखें आज की डेट में, लाइक आई हियर अ लॉट ऑफ एल्डर्स टॉकिंग अबाउट दिस कि रिलीजन शुड बी इक्वल, मतलब सब लिव एंड लेट लिव वाला एक माहौल है, एक कॉन्वर्सेशन है। लेकिन मैं हर उन मॉम डैड को यही बोलती हूँ, उन माँ बाप को यही बोलती हूँ कि आपको याद होगा कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे थे आपने कहा होगा कि किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन दूसरे रिलीजन के नहीं या दूसरे कास्ट के। अब मुझे लगता है वैसा नहीं है। अब नहीं है। अब शायद वैसा नहीं है, और एटलीस्ट मेरे घर में नहीं था। आपके घर में तो चांस ही नहीं था। तो पर ये है, मुझे पता है बहुत सारे घरों में मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई दूसरी जाति का कोई आदमी अगर आ जाए तो उसके लिए ग्लास अलग रखा जाता है। बिल्कुल। वो आज भी अनफॉर्चुनेटली छोटे छोटे कस्बों में हो रहा है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। I mean, वो अब ये हजारों साल से चलता आ रहा है, पता है, रातों रात चीजें नहीं बदलती हैं। यू कैन जस्ट चेंज योर लाइफ। हाँ, आप जैसे रहते हो ना, नाउ यू हैव अ बेबी बॉय, जब आप उसको रेज करोगे इन अ वे टू, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे, आई टेल यू व्हाट, बर्थ सर्टिफिकेट पे आता है रिलीजन, हमने उसको ब्लैंक छोड़ा है। तो जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट आया सरकार से तो उसका रिलीजन नहीं लिखा हुआ था उस पे। तो ये नहीं है कि सरकार आपको बोलती है कि लिखना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वो नहीं आएगा उस पे। तो वो हमको शायद पता नहीं है। द मोमेंट वी गॉट हिज बर्थ सर्टिफिकेट वी सेड कि रिलीजन, उसको मैंने डैश मार दिया। जब उसकी लैमिनेटेड कॉपी मेरे पास आई तो उस पर रिलीजन उसका नहीं लिखा हुआ था। और जैसे जैसे बड़ा होगा वो देखेगा शायद खुद, अगर वो विश्वास करता है नहीं करता है, कैसे उसको अपनी लाइफ जीनी है। यार ये तो हमारे पहले से ही है यार, मतलब इतना पार्टीशन हमने देखा है इतने करीब से, इतने वर्ल्ड वॉर्स हमने देख लिए इतने करीब से यार। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ हम सब जगह गए हैं। एंड लाइक हम सब गुरुद्वारे गए, हम सब मंदिर गए, हम सब दरगाह गए, हम सब जगह गए हैं, चर्च, माउंट मैरी, सब जाते हैं। एंड इट्स व्हाट यू सेड अर्लियर कि वो उस वक्त रिलीजन की बात नहीं होती है। मेरा मानना है कि अगर इतने सारे लोग एक पत्थर पे विश्वास रख रहे हो या एक मूर्ति पे विश्वास रख रहे हो, उस एरिया की एनर्जी उनके बिलीफ और फेथ से पावरफुल हो जाती है। तो वो पावर फील करने के लिए वहाँ पे काम है, वहाँ पे पीस है, वो फील करने के लिए आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, you have to treat each other right at least यार। मतलब आज it'll be such a shame if, I mean, my parents will be so heartbroken if I actually treat people based on what religion they are.
And now that I'm a father myself, I would be so heartbroken if I realize my son is treating anybody based on the practices they follow. I mean, ऐसे नहीं होना चाहिए. We were not raised that way. I am certainly not raising my child that way. But होता है, unfortunately, as I said, आज भी बहुत से घरों का मैं गया हूँ उन घरों में जहाँ पे अलग स्टील के बर्तन रखे गए हैं अलग जाति के लोगों के लिए. है, अब क्या कर It's सकते हैं. sad, but it's true. But I feel कि इसीलिए हम कहानियां बनाते हैं. hope के लिए. इसीलिए हम कहानियां Change के बनाते लिए. हैं कि, और ये प्रिविलेज है रिया, इसीलिए हम ये कहानियां बनाते हैं कि अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी में वो समाज में वो बदलाव लाने का हम एक तिनका डाल दें. तो लेट्स सी. And I think this is exactly what Amir sir also says all the time. Yeah. कि यार मुझे कहानी में नहीं, यार मुझे नहीं करनी है कहानी जिसमें hope नहीं है. Because art at the core of it has to have hope ना. Of course. आप कुछ पेंटिंग भी देख लो, आप किताब भी पढ़ लो, it should leave you कि हो सकता है. You can do anything if you want to do anything. तो जिंदगी वैसे ही मुश्किल है. एक तो वैसे ही इतनी सबके लिए नेगेटिविटी मुश्किल है. इतनी नेगेटिविटी है वैसे ही, और स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. आज अगर हम जीना ही छोड़ देंगे या होप ही छोड़ देंगे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, यू नो. एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हिम इन मोस्ट स्टोरीज, वेदर एनी आर्ट फॉर्म इन फैक्ट यार, रादर आई फील उसमें होप होना बहुत जरूरी है. I agree. वो गिनती के वही 5 या 6 टेनेट्स हैं जिन पे कहानियां बनती हैं, एंड होप इज वन ऑफ द बिगेस्ट tenets of that, of storytelling, you know. Agreed. Without hope and faith, you're nowhere. Yeah. And on this very hopeful note, should we take a break? Yeah, of course. Of course. कोई ऐसे ज्यादा प्रवचन तो नहीं हो रहा है How's ना, it बस going, this is guys? how Now it is, come and yeah, give us. this is how we are. Listen, I really enjoyed the concert. We can roll. He can come midway. Let's go. थोड़ी भूख लगे बीच में. हाँ ना यार, आराम से खा. अब तक तो whatever you're telling me, Vikku, thank you. अब तक जो भी तू मुझे बता रहा है, all seeming very like विक्रांत ना sorted बंदा है, इतना collected बंदा है. What's the catch? बिल्कुल नहीं. What am I missing? इन 7 सालों में ऐसा मिस क्या किया है मैंने जो है, मतलब वैसी वाली चीज है कैसी वाली? इसमें थोड़ी मस्ती है, नॉटीनेस नहीं है यार, कुछ किया है. अभी भी है वो चीजें. एक्चुअली कुछ सवाल है मेरे पास. आई थिंक आई हैव आस्क्ड यू सम वेरी, we've had a real, I mean we had to catch up. Yeah. But now I want to ask you some things that maybe people don't know about you, Yeah. which even I don't know about you. Okay. मतलब before we begin, मतलब ये कोशिश है, हाँ, ये I am not as sorted as I seem. बिल्कुल नहीं. वो डिस्क्लेमर तो आप दे चुके हैं, आपने बड़े अच्छे से समझाया है. एंड बट स्टिल यू स्टिल कम अक्रॉस की लाइक वाह व्हाट अ गाय. And I know you are that guy, but let's get to know you a bit more. I want to know, let's talk about your first heartbreak. First love or first heartbreak, whatever you want to call it. हाँ, मतलब heartbreak था यार. I was in school, I remember very clearly, and we are still on and off in touch. वो school crush जो होता है, you know, when you're sort of stepping into that age, when you're in class 8th, 9th, you know. So I did sort of really like a girl then, and she also knew that I liked her. इसको मैं थोड़ा बहुत brief रखूँगा because there's every possibility that they'll be watching this episode. So I really liked her, you know, and she used to stay like 5 minutes away from my place. मैं tuition के लिए उसी के complex में जाता था. And we were in the same class, in class 7th, 8th and 9th and 10th also actually, last 3-4 years. तो मैंने propose कर दिया उसको कि यार चलो हमारी भी girlfriend होगी. Propose, I've not heard this word in so long. Yeah, I proposed to her and then she said नहीं, because she came from a very conservative family. She's like no, you know, my brothers get to know, they'll sort of kill me and kill you also. And I was like okay. So one of my closest friends is now her husband. Oh. And they have 2 beautiful kids. And they went to the same college. I went to National College. They went to the same college. And but how does that work? One of your closest friends is now with the first love of your life. नहीं, love नहीं कह सकते. मतलब, you know, First crush चलो. First crush, or you know, crazy infatuation you can say.
बट ठीक है यार, लाइफ है, होता है यार, इट तो ये हार्ट ब्रेक था फिर? हाँ, मतलब आई वाज लाइक व्हाट द, यू गॉट टू नो दैट? नहीं, they only told me. अच्छा, they The came. guy only told me. The guy only told me, gracious enough of him to tell me when we were in college. क्योंकि स्कूल के बाद सारे you know how it happens in Mumbai, 11th is college, ठीक है. So when they went to their college, they enrolled together, they got the admission together, and they said कि यार विक्रांत ऐसा ऐसा है. तो I tried to put up a brave front. I said कि अच्छा, good, nice, but I was like, what the, but होता है, happens. तो वो मुझे लगा था यार, मैं 10-12 दिन तो बड़ा दुखी था. I said कि यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. पर वो लाइफ में 2-3 बार हुआ है, मतलब नॉट जस्ट फ्रेंड वाला सीन नहीं है, 2-3 हार्ट ब्रेक हुए हैं. आई थिंक हम सबके साथ ऐसे होता है, बाय द टाइम यू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फाइंड द इट पर्सन एंड यू सेटल डाउन. और शहरों में तो खास तौर पे होता है वो, वक्त लगता है. हाँ लगता है, एंड ऑल्सो थैंक गॉड पहले दूसरे तीसरे आपके नहीं हो जाते फाइनल. यार पहले तो ऐसे होता था, आई नो सो मेनी पीपल. मैं थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रहा था कि शादी के दिन हस्बैंड एंड वाइफ आर सीइंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन. पहले तो यही होता था. And they used to survive also. And they have वो शादियां survived. चल रही हैं अभी भी. And how beautifully. I तो think arranged marriage is good only. It might be better than love marriage. I have some friends and all. मेरे भाई के एक दोस्त यार देखो ऐसे तो नहीं कह सकते, generalize नहीं कर सकते इस केस में, because some arranged marriages are also disastrous. disastrous. No, I'm saying there's more motive to kind of like be there and sacrifice and accommodate. जो love marriage में थोड़ा सा कम हो जाता है. अब जानते ही हो उसको. नहीं यार, मतलब I don't know यार, मुझे नहीं पता. I know what works for me. For you तो love marriage has clearly worked. And I always wanted love marriage. I remember you talking about Sheetal then. Yeah. You all have been together how long now? 10 years now. 10 साल हो गए. 11 हो जाएगा अभी दिसंबर में. Wow. 10 plus. How did you and Sheetal meet? So we met through a common friend, and that friend, is not from Mumbai. Sheetal also had just moved to Mumbai at that time. So I met her through a common friend, and sparks immediately flew. Like, she's so pretty. I'm like, wow, She is. she's very pretty. And I'm like, कि यार ये तो बड़ी सुंदर है. And I was also single at that time, and of course, did spend like 2-3 days together. And it was definitely not love at first sight. It was love at third sight. But then both of us felt like serious sparks flying around, and she said something so interesting. I've said this like a lot before. New Year ka time tha, I remember. I was going to Karjat with my friends, and I formally invited her. I'm like, oh, why don't you come? She's like, no, what will I do with your friends? I mean, I don't even know them. Just sort of started expressing each other to each other. So she said, no, please go. And then we had that awkward hug moment, side hug de, ki front hug de, kya de. And I realized I was missing her terribly on that New Year. So I was with my friends in Karjat, and I was on the phone all throughout. And my friends are like, yaar, tu aaya hi kyun hai yahan pe? And then when we met again after that, she said something very, very interesting, which is actually true now. And thank God she said that. She said, the moment I saw you, when I met you, I saw the father of my kids. And it sounds really creepy. No? No, I mean, one can see it that way, no? One can definitely see it that way. If a guy said the same thing to a girl, it That's creepy. probably would have been taken the other way around. But I said, Acha. ठीक है. And yeah, we are parents to a wonderful boy today. It's crazy. Yeah. And I remember you telling me then 7 साल पहले जब हम shoot करते थे, you like, I found the one. I know, मतलब she's my home. I remember you describing something very warm that you shared with her, and why that something is something you want to hold on to. And then I saw you guys get married thanks to social media. And I was like, okay, a baby. Thank you. It kind of makes sense. But usually लड़कों को वो सही लड़की मिलने के लिए एक कंडीशनिंग दी जाती है कि पहले आप पढ़ो या फिर कुछ करो, फिर पैसे कमाओ, अच्छे पैसे कमाओगे तो अच्छी लड़की मिलेगी. लाइक दिस इज द यूजुअल लॉजिक. Yeah. Sadly, yeah, that's true. आपको तो पहले मिल गई थी. हाँ, मुझे पहले मिल गई थी, फिर उसके बाद पैसे खत्म हो गए,
फिर उसके बाद she took care of me. She took care of you? Yeah. So she supported me for a good 4-5 months. Almost half a year actually, you can say, for 6 months, when I was trying my luck in films. After Lutera, I waited for a few films to come by, but that never happened. So I went back to TV because television was always there, and I'd done a decent amount of job there. So I went back to TV. I did Kabool Hai, and then a few other films came my way. So she supported me then. I mean, I don't know. I don't know what works. I don't know what does not work. But in our case, I think our backgrounds were very similar. Our hunger for a good, dignified, respectable life was very similar. Value systems were very similar, actually. Our worldviews are similar. We know what we want in the longer run. So, disagreements होते हैं. Of course. सबके होते हैं. बट जो पिलर्स हैं आपके, वो पिलर्स थोड़े से मजबूत हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत ज़रूरी है. हैविंग सेड और एक्सेप्टेड द फैक्ट कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच रिमेन That keep you all group together. Yeah. Tell me, let's understand our relationship with money. Okay, like even I come from a middle class upbringing, जहाँ पे मतलब चाइनीज खाना जिस दिन मंगाते हैं, चाइनीज खाना मतलब एक राइस, एक नूडल और एक मेन कोर्स. डिमसम नहीं, स्टार्टर. तभी तो नहीं, चिकन चिली आता था. वो एक ही है, चिकन चिली आता था. तो you know what I mean? Yeah. तो वहाँ से जब हम यहाँ आते हैं, now you are in this phase of your life, I'm in this phase of my life. Even till date, अगर मैं घर पे मॉम डैड के साथ खाना मंगा रही होती हूँ, I'm like a lot of dim sums. They won't look at me. बहुत ज़्यादा उछल रही है dim sums, तभी dim sum होता भी कहाँ था यार. It's a thing. मोमोज होते थे. But it's a thing. कि 3 डिश से ज़्यादा नहीं या 4 डिश से ज़्यादा नहीं, पागल हो. और अगर बच गया तो अगले दिन खाओ. 100%. और लेफ्ट ओवर्स का मजा कुछ और. आज लंच में मिक्स करके खाएंगे दाल चावल एंड चिली चिकन. बट हाउ डज दैट रिलेशनशिप चेंज? आपके लिए क्या बदला है? ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. एनीवन जो हम डिस्कस कर रहे थे इस टाइम से आता है जहाँ पे कम में भी खुश थे तो ज्यादा मिल गया. मुझे लगता है जब कम था ज्यादा खुश थे. ये मुझे बहुत जेन्युइनली लगता है. जब कम था ज्यादा खुश था मैं. और हम लोग घर पे भी बैठ के कई बार बात करते हैं कि जब वो हमारा 450 स्क्वायर फीट का 1 BHK था, हम तब एटलीस्ट हमारी बातें ज्यादा होती थी. वी यूज्ड टू हैव कॉमन मेमोरीज. अब एक का कमरा वहाँ है, एक का कमरा वहाँ है, कोई टीवी रूम में बैठा हुआ है, कोई कहीं है, कोई स्विगी से ऑर्डर कर लो, कुछ भी चाहिए. इतना कुछ है लेकिन पता नहीं व्हाट टू ईट. तभी तो ऐसा होता था कि हम चटाई बिछाते थे नीचे, तो मेरे भाई की और मेरी ड्यूटी होती थी कि चटाई बिछाओ, प्लेट्स लाओ, रखो, फिर हम नीचे बैठ के खाते थे. फिर वो उसको उठाने की भी हमारी ड्यूटी होती थी. फिर चटाई पे अगर कुछ गिर गया तो गीले कपड़े से चटाई को साफ करो, फिर उसको रोल करके एक कोना होता था, उसको कोने में वहां डालो, कबर्ड के पीछे. हाँ, कबर्ड और दीवार के बीच में एक जगह बनाई हुई थी. तो बट माय रिलेशनशिप विद मनी, आई थिंक ऑफ कोर्स इट्स चेंज्ड विद टाइम. आई वेरी फर्मली बिलीव इन वन थिंग कि पैसा बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. पैसा बहुत जरूरी है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, और ये वर्ल्ड ओवर है, अगर आपके पास पैसा है तो इज्जत है. अनफॉर्चुनेटली. और फ्रीडम है. आई फील लाइक फ्रीडम है. आपको कहीं जाना है, आपको कोई फ्लाइट टिकट बुक करनी है, आपको अपने मॉम डैड को पहली बार लाइक इंडिया के बाहर लेके जाना है. दीज आर द थिंग्स, राइट? आई ऑलवेज से वन थिंग, मैंने बीच में आई वाज एट अ पब्लिक स्पीकिंग event when I said this thing, and a lot of people sort of really appreciated what I said. So एक ना वो reiteration मिल गया मुझे कि नहीं, I think I'm thinking right. Money does not, when people say no, money does not give you happiness, I think that's wrong. Money gives you happiness. Yeah. Indirectly, because money gives you confidence. Like the freedom you're talking about is also part of that confidence, and that confidence gives you happiness. तो I तो love money. 100%. मुझे मतलब not that I'm obsessed with it. आज मैं इतना कह सकता हूँ, और ये भी privilege ही है यार, कि अगर कल को नहीं भी रहेगा तो I'll be upset, but I know that I've done enough to lead a decent life. ऐसा होगा नहीं, उसका भी confidence है, but
But money is very important here because I've seen, I have been subjected to it. I've said it time and again. I don't want to repeat the same thing again and again. But आज भी हम देखते हैं यार कि शूटिंग सेट्स पे हम कितनी बार देखते हैं यार, मेरे कौन बड़ी गाड़ी में आ रहा है, कौन बड़ी गाड़ी में आ रहा है, कौन ऑटो में आ रहा है. मैंने कई बार, आज भी अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ मेरे पेरेंट्स के एज के लोग सेट पे काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए उनको वैसे ही ट्रीट किया जाता है बाय समवन हुज 20-22. 20-22 साल का लड़का एक 70 साल के आदमी को भी गाली दे देता है क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड है, या वो कोई सेटिंग वाला है, या वो लाइट वाला है, या वो जनरेटर वाला है, या वो केटरर है जो आया है वहाँ पे बैठा है. तो ये सच है अनफॉर्चुनेटली कि आपकी जेब में पैसा कितना है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू द इज्जत यू गेट इन द सोसाइटी. ये है जिंदगी का दस्तूर है. और ये मैंने कई बार बोला है, मैं ब्रीफली ये चीज बोलूंगा कि द डे आई चेंज्ड माय कार एंड आई एंटर्ड द सेम सेट जहाँ पे मैं शेयरिंग ऑटो में जाता था, मैं बालिका वधू की बात कर रहा हूँ. बालिका वधू की शूट होती थी नायगांव में, आरसी डेयरी में. मतलब उसके लिए मेरे को बस लेना होता था. मैं 249 बस लेता था यारी रोड से अंधेरी स्टेशन, वहाँ से मैं स्लो ट्रेन लेता था. आई यूज्ड टू गेट ऑफ एट नायगांव, फिर मैं शेयरिंग ऑटो लेके आरसी डेयरी जाता था. एग्जैक्टली मुझे 1.5 घंटा लगता था. मैंने गाड़ी ले ली उसी पैसे से. उसी सेट पे जब मैं पहुंचा हूँ, उसी सेट के सिक्योरिटी गार्ड का गुड मॉर्निंग बदल गया. तो वो है दैट हैपेंस. आज की तारीख में देयर आर सो मेनी पीपल यू मीट हु प्रोबेबली सॉ यू इन अ डिफरेंट लाइट, बट because you are famous and because you are respected also for the job you do, the way they treat you is different. तो होता है, वो happens. तो are you saying that आपका पैसे से रिश्ता बदल गया है? I feel, correct me if I'm wrong, कि जब आप struggle कर रहे होते हो, which is a phase that we've had in our lives where there has been no money or financial difficulties, we've all, I mean you and I have at least faced it, that I know. तब एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी नाराजगी भी रहती है. जिंदगी से नाराजगी होती थी, जिंदगी क्यों नहीं से है मेरे पास इतना? और पैसों से भी, और पैसे वालों से भी हो जाती है कभी-कभी. या होती है, एक एनवी आता है, होता है, वो नेचुरल है. और फिर जब आपकी लाइफ बेटर होने लगती है, बेहतर होने लगती है, आप कमाने लगते हैं या आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो वो रिश्ता बदल जाता है पैसों के साथ. आप शायद उसकी इज्जत करने लगते हैं. आप समझते हैं कि अच्छा इससे मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं इससे. ऑन अ सीरियस नोट, यू नो, when you realize that medically you can take care of your parents, कुछ भी हो जाए, you know कि आपको, I mean you have secured yourself in all possible ways, but कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं यार, किसी बैंक के मोहताज नहीं है, नहीं चाहिए इंश्योरेंस यार. आज एटलीस्ट मैं इतना केपेबल हूँ कि मेरे घर के जितने भी लोग हैं, मैं, और एक बार हुआ मेरे साथ, पता है, I was not in town. My father was admitted for his heart condition, and Sheetal was there at that time. We were not married. Sheetal had taken my dad to Hinduja. तो मैं जब जैसे एलिवेटर से बाहर निकला, I saw my mom stand in a queue. There were 2-3 people in front of her, and she was standing in a queue with a folder in her, armpit. And I was like, क्या हो गया? What are you doing? She's like, नहीं, मुझे insurance claim करना है. I took that paper and I tore it. I said, don't ever do that. Let's go. I mean, वो भी privilege है, but see यार, पैसा confidence देता है यार, पर पैसा ही सब कुछ है वो भी नहीं है. पता नहीं, it's a catch-22 also. पता है, अब सिर्फ पैसे के लिए मैं काम नहीं कर रहा, वरना पैसे के लिए काम करना होता तो मैं 10,000 चीजें और करता, बहुत सारी चीजें और कर रहा होता. But हाँ, to everyone who's listening to us through this, at least मेरा ये मानना है, you might not agree with me, but ठीक है. एक तो we should agree to disagree, हाँ बिल्कुल, healthily. बिल्कुल यार, वो भी नहीं होता आज की तारीख में. वो भी नहीं है मेरा थॉट या कोई थॉट वो भी नहीं होता. बट ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि हाउ मच इज इनफ ऑल्सो. हाँ, आई थिंक वहां भी एक बिल्कुल एंड सो ब्यूटिफुली सेड. मे बी आई वांटेड टू से दिस थिंग एंड आई कुड नॉट से इट. हाँ, मतलब हाउ मच इज इनफ, वो भी कोई एंड नहीं है ना. आज आपने गाड़ी खरीदी, फिर आपको BMW मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, आपके पास घर है, फिर आपको बड़ा घर चाहिए, फिर आपको 2 घर चाहिए. अच्छा, मम्मी पापा नीचे, हम ऊपर, ये भी चाहिए होता है, राइट? देयर इज नो एंड टू इट. उसका अंत नहीं है कोई. एक काफी रईस लोगों कंटेंटमेंट होनी चाहिए. नहीं होती है कंटेंटमेंट होनी चाहिए. आई फील कि जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और जो
अपने दम पे कुछ कर जाते हैं और अपनी लाइफ बेटर कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, दे आर द बेस्ट सेट टू रीच कंटेंटमेंट. आई थिंक सो. क्योंकि मैं काफ़ी रईस लोगों को भी जानती हूँ, मैं उनसे अक्सर ये बात पूछती हूँ कि आपके पास तो इतना पैसा है, आप इतना क्यों भाग रहे हो अभी भी, लाइक व्हाई यू स्टिल सो अनसैटिस्फाइड. आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्क, श्योर आपका पर्पस होना चाहिए, आपको कुछ काम करना है, सबको करना है, मेंटली शार्प रहने के लिए, फिजिकली अलर्ट रहने के लिए. पर वो लोग खुश नहीं लगते, वो लोग लगते हैं कि मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए. I mean, I don't subscribe to that, definitely. You know, बीच में I actually put out this statement in the media saying that I want to take a break, which was sort of misinterpreted as retirement. हाँ, Yeah. पागल हो गए हो क्या? अभी तो गाड़ी शुरू हुई अभी तो है गाड़ी शुरू हुई है, अब तो मैंने दूसरे गियर में डाली है 15 साल के बाद. 21 साल के बाद. 21 Like I साल see it that way, you know. I started off in 17, 2004 after 21 years. One of the major reasons was I wanted to probably took stock of my life. As I said, parents हैं, आज भी हैं, उनका आशीर्वाद आज भी है. अच्छा घर है, बीवी बच्चा है, कितना भागूंगा? I probably decided because of this. My memory of my son at that point in time, before I had sort of, अच्छा और डिसीजन मैंने तब नहीं लिया था, डिसीजन पहले लिया था, वो पब्लिक डोमेन में तब डाला था. ऐसा नहीं कि उसी वक्त सोचा और उसी वक्त डिसाइड किया. राइट, यू स्टे विद अ थॉट इन योर हेड, you probably have decided months in advance, Sure. weeks in advance, and then you break it to the world. And that's the case with most decisions you take in life. My memory of my son was on my phone. उसका दांत आ गया, I was not there. He started saying Papa, I was not there. Started walking, I was not there. I mean, these milestones, I'm not there. And I'm so grateful I had a wife and my parents who were there, and they were living that moment, and they would send me 20 videos a day. और मैं काम कर रहा हूँ, 50 डिग्री में लगा हुआ हूँ. ग्रेट, आई ऑलवेज वांटेड दैट, बट यू नो वो एक इवेल्युएट करना का टाइम आ गया था मेरी लाइफ में. उस टाइम पे आई सेड कि यार ये कभी नहीं आएगा वापस. And what do you want? This will never come back, and you know it. We've spoken about it when we were in South Africa, or you know when we were traveling the world together during half girlfriend said कि यार घर परिवार चाहिए यार, किस लिए काम कर रहे हैं. मुझे एक सेफ स्पेस की जो मैं बात कर रहा हूँ. My biggest aspiration in life has always been that, you know, to be a father, to be a husband, to be a good son-in-law, to be a good son. You know, एक normal सी जो है जिंदगी की, मेरा हमेशा से वो aspiration रहा है. I said कि you know what, I want to take a break for a year. मुझे 1.5 साल ब्रेक लेना है. I want to go to the park with my son. I want to see all of that. फायदा क्या नहीं तो? क्या फायदा? Before you know it, you're 60, you're 70. Like you said, ना There are कि restrictions. कब तक भागोगे, कितना भागोगे, और क्यों भागना है? जब चल के तुम्हारी चीजें हो रही हैं तो भागना क्यों है? क्योंकि दूसरे भाग रहे हैं इसलिए. बस वही है, फोमो हो जाता है ना. This one is doing this, that one is doing that. You feel that. हाँ, वो एक फोमो तो होता ही है यार. I also still battle with this कि कभी-कभी मुझे लगता है I'm not doing enough. कभी मुझे I also feel that. डे ऑफ लेने का मन करता है तो इतना गिल्ट होता है कि यार I should be doing this, I should be doing that. But I'm like mentally sometimes you're exhausted. Yeah. We all have things we go Yes. through in our life. I'm like यार I need a break. As I said, even there are days when आज भी despite taking a stand कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है. You know, मुझे सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ you know अच्छे लोगों के साथ काम करना है, मुझे अपने कैरेक्टर पे मेहनत करनी है. But there are days when मेरे हाथ में भी फोन है. There are days when I see what other people are doing and I actually fall weak. And I use this word very carefully. And I sit back and I talk to my wife कि Shitu, am I doing the right thing? Am I doing the right thing? Will I be relevant? Because other people are doing this. But then 3 दिन के बाद I come back to square one. I come back to myself. पर वो आता, वो sporadically आता रहता है. But that's the thing, right? These thoughts are always going to come. आपको बस you have to re-remind yourself. Yeah. It's in therapy. It's the blue dog, red dog. अच्छा. The negative one that's saying, "Oh my God, your life is finished. Now everything's going to be bad. What's going to happen to you? Blah blah blah." And then there's the good dog that says, "No, look where you are. You're doing so much better. Yeah. खुश हो, family You know, है." Pinterest पे मैंने एक चीज देखी थी. हमारे ना ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप पे रोज गुड मॉर्निंग के लिए ना अच्छे कोट्स भेजते हैं लोग. So you are exactly where you wanted to be 10 years ago. And I am. It's true. It's अब उसके बाद भी क्या रोना है? हाँ. I have always said my todays have been better than my yesterdays. So
कुछ तो हो यार, मतलब शुक्र तो मनाओ, Self gratitude. ग्रैटिट्यूड होना I चाहिए. think that's the only prayer. Yeah. Even for me. And any gratitude is very important यार. अभी जैसे मैंने कहा कि जब कम था ना ज्यादा खुश थे, because gratitude actually तब भी था. छोटी छोटी चीजों में ही छोटी खुशी है. चीजों में. Yeah. But since we're talking about where you, आप कहाँ पहुंचे हो, जो आपको 10 साल में जहाँ पहुंचना था आप वहाँ पहुंच चुके हो. आगे के 10 साल 20 साल, आई नो वी मेक दीज प्लान्स, और ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमारे प्लान से जाते हैं. मेरी तो जिंदगी बिल्कुल मेरे प्लान से नहीं गई. आई एम अ शॉपकीपर नाउ. कपड़े बेचती हूँ. And a very good one that. Think about that. But still we like to think about our lives, right? मैं ये सोचती हूँ कि विक्रांत मेरा दोस्त है, अब 7 साल पहले मिला था, होपफुली अब 7 साल नहीं, अब अगले 7 साल वेट नहीं करना उससे पहले मिले. पर अगर you and I have to sit 20 years from now and maybe I still have this podcast, 20 and- years from now. where do you think you'll be in life? Where would you like to be in life? Your son will be 20. Yeah, healthy, happy, content, rich enough to live the life I want to live. Yeah, and 20 years from now I'll be 58, doing good work, like Amir or Ajay Devgan, direct, produce like them. I aspire to do that. You know, मुझे डायरेक्ट भी करना है, प्रोड्यूस भी करना है, लिखना भी है, थोड़ी बहुत दुनिया देखनी है. Want to sort of raise a good decent family. Travel the world is very important because पिछले 15 साल सिर्फ काम किया तो वो नहीं हो पाया. You won't believe, शादी हुई, बच्चा हो गया, हनीमून नहीं हुआ था हमारा. मैं अपने बच्चे के साथ अपनी वाइफ को सिंगापुर लेके गया, पता है. Cute. So your kid came along with you. Yeah. We had a 3-month-old baby boy on our first, trip after marriage. Amazing. So yeah, 20 years from now, yeah. So I hope कि जो अगले 20 साल की जर्नी रहे उसमें हम ज्यादा मिले, ज्यादा टच में रहे. अगले 7 साल ना लगाएं अगले 7 साल एक दूसरे से मिलने के लिए. And you do lots of amazing movies and I keep feeling proud of you, and I have to meet your son. Yes. तो मैं घर जरूर आऊंगी. बिल्कुल, you have to शीतल को come. मेरा प्यार, आंटी को मेरा प्यार. बिल्कुल, and give Showik my love and your parents my love, and we are definitely meeting. अब तो मिलते रहेंगे. इस बार जल्दी मिलते हैं. We've broken the jinx. Yes. And thank you for coming. Before we go, no, thank you for having me here, Riya, and congratulations on everything you're doing. You know, this is phenomenal. But besides that, thank you so much for sort of. I always knew that you're a very resilient, strong woman. You've always been that. But really proud of you. And like you said, you wouldn't trade the internal change that things have brought along, So always keep your chin up, like you've always done. Always. Super proud of you. Thanks, Vikku. Thank you. Thank you for having me here. Yeah. Thank you.